So welcome to the students. That is another very important topic, that is the laminar or viscous flow. This is my first lecture today, and I will start the lecture from the introduction part of that. First, we will try to understand that what is your laminar flow or viscous flow. Laminar flow या viscous flow क्या है? Laminar flow क्या है कि if the flow happens to be in layer or lamina and one layer slides past the other layer, or one layer of the fluid that slides over the other layer, so that you can say that flow is called the laminar flow. You understand? In this case, what happens? The layers are parallel to each other. इस केस में क्या होगा? जो लेयर्स हैं या जो हमारी स्ट्रीम लाइन है फ्लो की, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड the individual molecule of the fluid which is moving in the particular stream line, that will not cross the other molecules of the neighboring layer. You understand? तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो फ्लो आपका होगा, अगर आपका जो फ्लो है वो पैरेलल स्ट्रीमलाइन फ्लो है, पैरेलल पाथ में फ्लो है, और एक लेयर जो फ्लो की है वो फ्लो की जो लेयर होगी, if the one layer of the flow slide past the other layers, that is called the laminar flow. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? laminar flow कहेंगे. तो इसको हम लिख लेते हैं. तो अगर मैं आपको इसको बता दूं, ये आपकी स्ट्रीम लाइन्स हैं. These are the stream lines of flow, and from the stream line you have seen that these flow that is in straight line, and the stream lines, they are parallel to each other. You understand? They are parallel to each other. Next point is the fluid particle, which is the fluid molecule which is of this streamline, that will not jump or cut or cross to the other streamline. ये इधर से जंप करके इस स्ट्रीमलाइन के ऊपर नहीं जाएगा. You understand? That will remain at its own streamline. वो अपनी ही स्ट्रीमलाइंस के ऊपर, ये आपकी स्ट्रीमलाइंस हैं. So when the streamlines, they are parallel, they are straight and parallel to each other, such type of flow, that is called the laminar flow. As I told you that the molecules which are in this streamline, that will not jump or cross to the other streamline. So you can say that there is no momentum transfer in this case. इस केस में momentum जो होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा. You understand that? इस केस में आपका जो momentum है वो ट्रांसफर नहीं होगा. Or you can say there is no transfer of the momentum in this case. So this type of flow is called the laminar flow or viscous flow. Viscous flow किस लिए कहते हैं? Because the viscosity here, that plays the major role here. Or you can say viscosity that predominates the inertia forces. So viscosity का जो effect होगा इस केस में laminar flow में, वो क्या होगा? डोमिनेट करेगा इनर्शिया फोर्सेस को. इसलिए so we can say this flow is called the laminar flow as well as or viscous flow. You understand? तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. सपोज क्या है? if the flow happens to be if the flow happens to be in layers
oblique lamina that is each layer slides past the other layer. ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जो मैं लिखा रहा हूं. So that each layer slide past the other layer, right? Second, इसमें लिख लीजिए. In this case, किस केस में? लैमिनार फ्लो के केस में. In case of laminar flow, in case of laminar flow, the fluid molecules, they move in parallel and straight path. You understand? So in this case, fluid molecules that they move in the fluid molecules are, you can say, in this case, the streamlines are parallel to each other, right? Streamlines of the fluid are, you can say, in this case, the fluid molecules that moves in straight and parallel path, right? लैमिनार फ्लो के केस में क्या होगा? जो स्ट्रीम लाइन्स होंगी वो क्या होगी? पैरेलल होंगी, राइट? थर्ड अगर इसमें मैं लिखूं, दैट इज द ईच, थर्ड इसमें लिखूं, सच दैट द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स, इसमें करें सच दैट, the path of individual fluid molecule, do not does not cross or cut the neighboring fluid particle, or you can say neighboring the other neighboring streamlines. The path of the individual fluid molecule which is in the particular streamline that doesn't cross or cut the neighboring fluid molecules. Neighboring fluid molecules. You understand that? ये थर्ड पॉइंट आ गया कि जो आपका इंडिविजुअल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सर्टेन पाथ में है, इफ इट इज मूविंग इन दिस पाथ, सो दैट विल रिमेन इन इट्स ओन स्ट्रीमलाइन, that will not jump from that streamline to the other parallel streamline, adjusting parallel streamline. तो इस केस में क्या होगा? वो अपने ही पाथ के ऊपर मूव करेगा, ना कि वो एक स्ट्रीमलाइन से दूसरे स्ट्रीमलाइन में जंप करेगा या कट करेगा, उसको क्रॉस करेगा, बट दैट विल रिमेन इन इट्स ओन स्ट्रीमलाइन.
तो जब वो पार्टिकल्स, जब मॉलिक्यूल्स आपका पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन में ही रहेगा, तो इसमें क्या होगा, जो आपका मोमेंटम ट्रांसफर है, इसमें लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट ही, there will be no momentum transfer in this case. What does it mean? As I told you, एक मोमेंटम जो होगा आपका, इस केस में मोमेंटम ट्रांसफर जीरो होगा, इसमें कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज द पर्टिकुलर फ्लूइड मॉलिक्यूल दैट इज मूविंग इन इट्स ओन स्टेट पाथ, यू अंडरस्टैंड, that particular fluid molecule that will not jump from that streamline to the other streamline. जब वो जंप ही नहीं करेगा तो उसका जो मोमेंटम है वो तो ट्रांसफर नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड दैट, उसका जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर नहीं होगा, मोमेंटम उसका शिफ्ट नहीं होगा. रीजन इज बिकॉज इट इज मूविंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन, it will not jump from that streamline to the other parallel streamline adjacent, जो भी आपकी उसकी parallel streamline थी, it will not jump in that case. So ये भी पॉइंट बनता है, there will be no momentum transfer in this case. So this is the introduction part of that you understood it well, that what is your laminar flow. So such type of flow is called the laminar flow. अगर रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से भी आपको शो करना है, सो इन दिस केस रेनॉल्ड नंबर दैट इज लेस देन 2000, रेनॉल्ड नंबर के बारे में एक सेपरेट लेक्चर आपको देंगे, उसकी डेरिवेशंस क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या है, और डिफरेंट जो फ्लो है उनका डिफरेंट रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, सर्कुलर पाइप में क्या होगा, अदर केसेस में क्या होगा, उसका एक सेपरेट लेक्चर आपको दिया जाएगा, यू अंडरस्टैंड. तो जहां पे सिर्फ इतना ही याद रख सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर इन दिस केस, अगर रेनॉल्ड नंबर की बात करूं दैट इज आर ई बता देता हूं मैं, आर ई किसके बराबर होता है, रो इंटू यू इंटू डी अपॉन म्यू, राइट. सो रेनॉल्ड नंबर इन दिस केस दैट इज लेस देन 2000. इस केस में जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो 2000 से कम होगा. डी इज द डायमीटर, U is the velocity, rho is the density, and mu is the coefficient of viscosity, right? तो मैथमेटिकली अगर आपका रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 या 2000 से कम आएगा, so that flow is termed as laminar flow. और अगर रेनॉल्ड नंबर आपका ज्यादा आता है, हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि हमारा फ्लो जो है लैमिनार फ्लो है या चेंजिंग ट्रांजिशन फ्लो है. ट्रांजिशन केस जो होगा उस केस में रेनॉल्ड नंबर आपका 2000 से 3500 और 4000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर की अगर वैल्यू आती है तो आपका दैट इज द ट्रांजिशन फेज, एंड इफ दैट इज अबव देन 4000, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा होगी तो दैट इज योर टर्बुलेंट फ्लो, यू अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज योर लैमिनार फ्लो, हम इसको दोबारा समझेंगे कि जब कोई भी फ्लो, एक सिंपल भाषा में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर कोई भी फ्लो आपका है स्ट्रेट पैरेलल पाथ में है, देयर इज नो जिगजैग मोशन, एक स्ट्रेट पैरेलल पाथ में आपका फ्लो है और जो स्ट्रेट पैरेलल लेयर्स होंगी वो अपनी पाथ पैरेलल पाथ में मूव करेंगी, तो वो जो फ्लो होगा आपका वो क्या होगा, लैमिनार फ्लो होगा. इस केस में जो स्ट्रीम लाइन्स हैं या फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं आपके एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन में, वो उसी स्ट्रीम लाइन में फ्लो करते रहेंगे, बट दे विल नॉट कट और क्रॉस द एडजेस्टिंग पैरेलल स्ट्रीम लाइन, यू अंडरस्टैंड दैट. तो वो अपनी जो इंडिविजुअल पाथ है किसी मॉलिक्यूल का, उसी इंडिविजुअल पाथ के ऊपर वो मूव करेगा, मोशन में रहेगा, बट वो
दूसरा जो नेबरिंग फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है नेबरिंग स्ट्रीम लाइन में, उसके पाथ को वो कट नहीं करेगा, वहां पे वो जंप नहीं करेगा, राइट। अगर ऐसा है तो यू कैन से जो आपका मोमेंटम जो होगा, इस केस में मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो क्या होगा, नहीं होगा। इस केस में आपका कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा। विस्कस फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो में आपका मोमेंटम ट्रांसफर होता है, बिकॉज इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स दैट जंप फ्रॉम वन लेयर टू द अदर लेयर। तो जब जंप करेंगे तो आपका मोमेंटम ट्रांसफर होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। तो अगर पर्टिकुलर लेयर में उसका वेलोसिटी m इंटू यू है, तो जब वो जंप करके दूसरी लेयर में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी u डैश होगी, तो दैट के उस वक्त उसका जो मोमेंटम होगा m u डैश होगा। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, वहां पे मोमेंटम ट्रांसफर होगा। बट इन लैमिनार फ्लो द मोमेंटम विल नॉट ट्रांसफर। So this is the introduction, you can say definition of the laminar flow. अब अगले अब ये फ्लूइड जो आपका लैमिनार फ्लो में आपको मिलेगा, हाउ, इसके लिए क्या कंडीशन है कि फ्लूइड आपका लैमिनार फ्लो में है। तो इसके लिए जो वेलोसिटी है दैट इज plays a very important part here. इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है that should be very low. तो how we will get the laminar flow? In case of laminar flow, so in case of laminar flow, इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो वेलोसिटी दैट शुड बी वेरी स्मॉल। वेलोसिटी आपकी कम होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो आपका फ्लो जो है वो ट्रांजिशन में चला जाएगा, जहां टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो जहां पे वेलोसिटी जो पार्ट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर हियर, वेलोसिटी शुड बी वेरी स्मॉल। वेलोसिटी शुड बी वेरी स्मॉल। आपकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की, फ्लूइड पार्टिकल्स की, या फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो इन दैट केस यू विल गेट द लैमिनार फ्लो। सो अगर इसमें देयर इज वन मोर कंडीशन, लैमिनार फ्लो में वन मोर कंडीशन इज देयर, दैट viscous forces। तो डेफिनेटली जब आपकी वेलोसिटी कम होगी तो विस्कस फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट, विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट, विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट द इनर्शिया फोर्सेस। तो विस्कस फोर्सेस आपकी इनर्शिया फोर्सेस को क्या करेंगी? डोमिनेट करेंगी। अब देखिए, अगर आपकी विस्कस फोर्सेस इनर्शिया फोर्सेस को भी डोमिनेट करेंगी, सो यू कैन से ड्यू टू द विस्कस फोर्सेस क्या होगा? देयर विल बी द रिलेटिव मोशन विद इन द फ्लूइड। So you can say due to viscosity or viscous forces, ये कर सकते हैं, due to due to viscosity, due to viscosity what happens there? विस्कोसिटी से हमें अगर जहां पे देखा ना विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट, तो नेचुरली अगर ये विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट करेंगी तो इससे क्या इफेक्ट होगा फ्लूइड में? दैट इज देयर विल बी द रिलेटिव मोशन। क्या होगा? देयर विल बी द रिलेटिव मोशन विद इन द फ्लूइड। देयर विल बी द relative
motion, there will be the relative motion within the fluid as the layers slides past the other layer. तो इस केस में क्या होता है, एज वन लेयर स्लाइड पास द अदर लेयर, तो एज, तो आप कह सकते हैं एज द लेयर स्लाइड पास द अदर लेयर, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट? तो विस्कोसिटी से क्या होगा कि रिलेटिव मोशन डेवलप होगा फ्लूइड में, क्योंकि लैमिनार फ्लो में जैसे आपको अभी डिस्कस किया कि जो लैमिनार फ्लो में जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास करेगी, राइट? तो उससे क्या होगा, वहां पे रिलेटिव मोशन फ्लूइड में डेवलप होगा। अब रिलेटिव मोशन डेवलप होगा तो व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन, व्हाट हैपन्स, क्योंकि हर चीज जो है एक दूसरे से इन द कंटिन्यूटी में है। पहले मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी आपकी कम होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी कम है तो विस्कस फोर्सेस जो है प्रीडोमिनेट्स करेंगे इनर्शिया फोर्सेस को, और अगर विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट करेंगी इनर्शिया फोर्सेस को, तो जो फ्लूइड है उसमें क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा विद इन द फ्लूइड, क्योंकि जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास करती हैं इन द लैमिनार फ्लो। एंड द नेक्स्ट वन, सो एज सच, इससे क्या होगा, एज सच इट रिजल्ट्स the shear stress. As such it results the development of the shear stress, or you can say as such it results shear stress. इससे क्या होगा, हमें shear stress develop होगी within the fluid. You understand? So as such it results shear stress within the fluid. You understand? तो जे पॉइंट्स थे इसके, पहले तो आपको इंट्रोडक्शंस दिया, इसमें डेफिनेशंस, लैमिनार फ्लो क्या है, देन हाउ दिस लैमिनार फ्लो हैपेंस, दिस इज वेलोसिटी दैट शुड बी वेरी स्मॉल। अगर वेलोसिटी स्मॉल होगी तो विस्कस फोर्सेस जो होंगी वो इनर्शिया फोर्सेस के ऊपर प्रीडोमिनेट करेंगी, और विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा जो फ्लूइड विद इन द फ्लूइड आपका है, फ्लूइड में आपका रिलेटिव मोशंस होगा, बिकॉज वन लेयर ऑफ द फ्लूइड दैट स्लाइड्स पास द अदर लेयर। इस तरीके से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड पास करती हैं, तो ड्यू टू दैट विस्कोसिटी के कारण रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होने से क्या होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, हमें shear स्ट्रेस जो है डेवलप होगी विद इन द, इट गिव्स राइज टू द डेवलपमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ द shear स्ट्रेस विद इन द फ्लूइड। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपको जहां तक तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो वेलोसिटी शुड बी वेरी स्मॉल, राइट? लैमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी आपका है, देखिए ये वेलोसिटी दैट शुड बी वेरी स्मॉल। विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स किसको करती हैं, इनर्शिया फोर्स को, और ड्यू टू विस्कोसिटी क्या होगा, देयर विल बी द रिलेटिव मोशन विद इन द फ्लूइड, राइट? और इससे क्या होगा, एज सच इट रिजल्ट्स shear stress. You understand? Formation of the shear stress within the fluid element. Now you have seen here in laminar flow, you have seen here viscosity or the viscous forces, they plays a major role here, right? That is a very important you can say factor in this case. तो थोड़ा सा हम विस्कोसिटी के बारे में भी ब्रीफ इसकी थोड़ा डेफिनेशंस के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो विस्कोसिटी की हमें
इक्वेशन हमें जो मिलेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसका ले लेते हैं, अदरवाइज आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा विस्कोसिटी के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स जो आपके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए विस्कोसिटी, इसका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में ले लेते हैं हम। व्हाट इज विस्कोसिटी? देखिए विस्कोसिटी लिख लेते हैं हम इस जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो विस्कोसिटी, what is the viscosity, what is the definition of it? This is the property of the fluid. ये तो आपको पता है, if किसी fluid की property है, this is the property of the fluid and this controls the rate of flow. So you can say property of the fluid, property of liquid or fluid, जो भी कह सकते हैं, right? This control rate of flow, right? or in other word, अगर दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन करें, or in other word, क्योंकि हम लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? और इन अदर वर्ड्स, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस, आप कह सकते हैं विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस offered by one layer to other layer, right? So viscosity is the resistance offered by the one layer to the other layer. You understand? So this is the definition of the viscosity. Right? अच्छा, हमने जो shear stress का था, shear stress, मैंने कहा था आपको कि क्या होगा, इसमें shear stress डेवलप होगी, यही राइट? दैट इज टाउ, shear stress डेवलप होगी। जो shear stress है आपका, यू कैन से दैट मैग्नीट्यूड की बात करें हमें, मैग्नीट्यूड, because due to viscosity what is there, इससे क्या होगा? क्योंकि ये विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी है, दिस कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो, और यू कैन से इट विल रेजिस्ट द फ्लो, राइट? तो shear stress, जैसे आपको बताया, द इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द shear stress. तो अगर मैग्नीट्यूड मैं shear stress का करूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द shear stress क्या होगा? इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो मैग्नीट्यूड है इसका, इट वेरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट और section to section in the direction of flow, right? It varies from point to point. ये वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर। मैक्सिमम कहां पे होगा? इसका जो मैक्सिमम है,
सो अगर मैं मैक्सिमम, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं सारे। तो मैं शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था। शेयर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द विस्कस फोर्सेस, तो शेयर स्ट्रेस टाउ, इसको किससे डिफाइन करते हैं? टाउ से, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द tau means shear stress that varies from point to point. You can say that the shear stress is not constant, is not uniform. shear stress आपकी वेरी करेगी हर सेक्शन के ऊपर। इस सेक्शन के ऊपर डिफरेंट होगी, दूसरे सेक्शन के ऊपर डिफरेंट होगी, तीसरे सेक्शन के ऊपर डिफरेंट होगी। तो shear stress that will vary from point to point। कहने का मतलब क्या है? मैक्सिमम कहां पे होगी? मैक्सिमम shear stress, मैक्सिमम टाउ, मैक्सिमम टाउ कहां पे होगा? So maximum tau that should be at the boundary। जो मैक्सिमम shear stress होगी वो कहां पे होगी? बाउंड्री के ऊपर होगी, याद रखना है। मैक्सिमम shear stress at boundary। So as this is a circular tube here, circular pipe, and where we will get the maximum shear stress? Near the ball or at the ball, right? Because this is the boundary of the pipe, बाल का जो बाल है पाइप की, that is the boundary। और maximum shear stress आपकी कहां पे होगी? बाउंड्री में। You understand? So maximum shear stress at the boundary, and as the distance इंक्रीजेस फ्रॉम द बाउंड्री, ये आपका जहां पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे बाउंड्री से डिस्टेंस इसका इंक्रीज होता जाएगा, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द बाउंड्री, shear stress decreases। As the distance increases from the boundary, shear stress that is tau decreases। This point is clear? जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बाउंड्री से इंक्रीज होता जाएगा, जैसे नीचे की तरफ, जहां से इधर सेंटर लाइन तक, और जहां से ऊपर से जहां तक, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बाउंड्री से इंक्रीज करेगा, तो shear स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द बाउंड्री, shear स्ट्रेस डिक्रीज। यू अंडरस्टैंड? सो हियर यू हैव सीन दैट shear stress is not constant, shear stress is not uniform। At the ball, at the boundary, you can say your shear stress is maximum। और जिस तरीके से इसका डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इंक्रीज होगा, shear stress आपकी डिक्रीज होगी। और एट द सेंटर लाइन ऑफ दिस, ये बाद में प्रूव करके बताएंगे, एट द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप यू कैन से, एट द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप shear stress is 0। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सेंटर लाइन है, जहां से डिस्टेंस ऊपर या जहां से डिस्टेंस बाउंड्री का नीचे, तो सेंटर लाइन के ऊपर जो स्ट्रेस होगी ये आपकी मिनिमम होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? तो शेयर स्ट्रेस का भी आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला कि शेयर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट,
that is not uniform, that is not constant. At the boundary, you will get the maximum shear stress, and at the center line of the circular pipe की अगर मैं जहां पे बात करूं तो सेंटर लाइन के ऊपर आपकी shear stress होगी, वो क्या होगी, मिनिमम होगी. और यू कैन से एज द डिस्टेंस increases from the boundary, the shear stress decreases. You understand? ये हो गया इसके मैग्नीट्यूड के बारे में. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर डायरेक्शन की बात करूं मैं तो डायरेक्शन जैसे आपको बताया shear stress का क्या पार्ट है? shear stress that resists the control of flow. विस्कोसिटी, जैसे विस्कोसिटी की डेफिनेशंस थी that resists the control of the flow, तो shear stress भी क्या करेगी, जो आपका फ्लो होगा, जो मोशन होगा, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी. यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ shear stress, जो डायरेक्शन है इसका मैग्नीट्यूड तो हमने डिस्कस कर लिया. सो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, shear stress की, व्हाट इज द डायरेक्शन? दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ये क्या होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. अपोजिट टू द डायरेक्शन, opposite to the direction of flow. You understand? तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो आपके फ्लो का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? जो फ्लो का आपका डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट होगा. सो मैग्नीट्यूड भी इसका हमने डिस्कस कर लिया, shear stress का, shear stress that which dwells in the fluid, और इसका जो डायरेक्शंस थी दैट वी आर डिस्कस्ड. अब विस्कोसिटी की बात चल रही थी. अब विस्कोसिटी का अगर मैं इफेक्ट की बात करूं, सो इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी, तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ राइट, देखिए फर्स्ट मैं लेता हूं व्हेन द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड बाउंड्री. अगर आपका लिक्विड सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में है, जैसे ये आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, दिस इज योर सॉलिड बाउंड्री, और जो आपका लिक्विड इसके कांटेक्ट में होगा, सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में होगा, तो इस केस में क्या होगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड बाउंड्री. तो आप कह सकते हैं नो रिलेटिव मोशन, no relative motion between the liquid and solid boundary, right? इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. No relative motion between the liquid and the solid boundary. और आप कह सकते हैं if the solid boundary is at the rest, if the solid boundary is at the rest, the liquid which is in contact with the solid boundary, that is also at the rest. And if the solid boundary is moving with some velocity, say v, if the solid boundary is moving with some velocity, say v, the liquid is in contact with the solid boundary, that is also moving with the same velocity. You understand? तो ये दो पॉइंट लिख सकते हैं, लिख लेते हैं हम. तो पहला पॉइंट था if the solid boundary is at
if the solid boundary is at rest. तो पहला क्या था, अगर आपकी सॉलिड बाउंड्री रेस्ट में है, if the solid boundary is at rest, then liquid is also at rest, right? Then liquid is in contact. Liquid is in contact with solid boundary is at rest, right? Then the liquid is in contact with the solid boundary. This is also at rest. और अगर सेकंड है, इधर लिख लेते हैं, सेकंड आपका है इफ, सेकंड पार्ट इसका, इफ द सॉलिड बाउंड्री, ये इसलिए लिखा रहा हूं मैं आपको, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बेसिक पॉइंट आपको समझ आनी चाहिए. इफ द सॉलिड बाउंड्री is moving with some, if the solid boundary is moving with some velocity, if the solid boundary is moving with some velocity, the liquid is in contact, the liquid particles or liquid is in contact, the liquid is in contact with solid boundary will also move with same velocity. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि अगर आपकी सॉलिड बाउंड्री रेस्ट में है तो लिक्विड और लिक्विड पार्टिकल्स विच आर इन कांटेक्ट विद द सॉलिड बाउंड्री दैट विल रिमेन इन रेस्ट. यू अंडरस्टैंड? एंड इफ द सॉलिड बाउंड्री इज मूविंग, दैट इज इन मोशन with some velocity, the liquid is in contact with the solid boundary will also move with the same velocity. You understand? So this is also important point. तो हमने ये लिख लिया. अब देखिए, अब इसमें जो shear stress आपका प्रोड्यूस हुआ, shear stress जहां पे क्या हुआ, shear stress प्रोड्यूस हुआ, बात तो shear stress ही हो रही है ना यहां पे. shear stress so produced है ना, shear stress so produced due to viscosity या viscous forces, जो सारा पहले आपको बताया. shear stress so produced between the adjacent layers is directly proportional to the rate of shear. जो shear stress produced between the adjacent layer, that is directly proportional to the, ये किसके होगा, ये आप कह सकते हैं डायरेक्टली proportional to the rate of
shear strain, ये किसके बराबर होगा? जो shear stress दो लेयर के बीच में प्रोड्यूस होगी वो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear strain है। सपोज ये आपका एक लेयर या स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरी है, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस between them, between the two layers, that is y। तो जहां पे जो रेट ऑफ shear strain होगा, you understand that shear strain किसके बराबर होगा? that is b upon y, you understand there। तो जो आपका इस केस में रेट ऑफ shear strain, that is proportional to b upon y, right? The rate of shear strain, that is you can say proportional to b upon y। किसके proportional होगा? b upon y। v is the velocity of the both stream having the same velocity and y is the distance between the two layer। तो इनके बीच में, क्योंकि मैं ये दो लेयर्स की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में रेट ऑफ shear strain होगा, that is b upon y। So according to the Newton's law of viscosity, Newton law of viscosity क्या था? तो यो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था, वो क्या था? shear stress that is directly proportional to the shear stress on a layer of fluid shear stress on a layer of fluid। This is the Newton law of viscosity। shear stress on layer of fluid is directly proportional to the rate of shear strain, is directly proportional to the rate of shear strain। So you can say mathematically क्या होगा इसका? अगर मैथमेटिकली लिखिए हम, मैथमेटिकली tau proportional to b upon y, मैथमेटिकली tau proportional to b upon y, shear stress on a layer of fluid is directly proportional to the rate of shear strain। This is the Newton's law of viscosity। So mathematically we will write down like this, tau proportional to this one, or you can say इसको इस तरीके से भी लिख लें, tau this is equal to mu into b upon y, where mu that is the coefficient of proportionality, this is the mu क्या है? that is the constant of proportionality। जहां पे constant of proportionality की जगह क्या लिखा? mu is the constant of proportionality। और इसको हम mu को हम coefficient of absolute viscosity, coefficient of absolute viscosity या डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका इक्वेशन आया, टाउ इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी वाई। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो आगे हम जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखूं, क्योंकि आगे जो इक्वेशन होगी
डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, सो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी इक्वेशन की? डिफरेंशियल लिख लो, डिफरेंशियल फॉर्म। सो व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस? Differential form, this is tau is equal to mu into dB upon dy. This is the differential form of the equation. You understand? So जहां पे आपका differential form आपकी जो है equation की होगी. You understand? So this is the अच्छा, जहां तक चीजें क्लियर हैं इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें एक दो कंक्लूजन, आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा, तो वो आप नोट कर लीजिए। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द shear resistance टू फ्लो, तो shear resistance प्रोड्यूस होगा, तो जो shear resistance आपका होगा वो क्या करेगा? जो shear stress प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगा? फ्लो को रेजिस्ट करेगा, राइट? तो आप कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू, इसमें एक और कंक्लूजन निकलेगा आपका, इन ऑर्डर टू ओवरकम द shear resistance to flow, pressure drops from section to section, right? तो ये अगर इसको ओवरकम करना है तो क्या होगा? जो प्रेशर आपका होगा, प्रेशर drops from section to section। तो इस केस में आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, बिकॉज प्रेशर इज ओनली द अवेलेबल कंपोनेंट विच विल ओवरकम द shear resistance। तो डेफिनेटली क्या होगा? प्रेशर आपका कंज्यूम होगा shear resistance को ओवरकम करने के लिए। तो आपका सेक्शन प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेक्शन टू सेक्शन ड्रॉप करेगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट, द प्रेशर ड्रॉप होगा। सपोज करो इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर ये सेक्शन में लेता हूं जहां पे प्रेशर आपका P1 है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, विच इज लेस देन P1। अगर नेक्स्ट सेक्शन लूं तो उसका जो प्रेशर P3 होगा, दैट इज लेस देन P2 एंड P1। तो दैट इससे क्या मिलेगा हमें? जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट विल एग्जिस्ट। तो ये भी एक टर्म आपको आ गई। इस केस में आपका प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड? प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट। तो ये आपके जहां पे देखिए कितने कंक्लूजन आपके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गए। एक तो आपको शेयर स्ट्रेस की जो डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन थी जिसको हम आगे यूज करेंगे, वो मैंने आपको पूरी इक्वेशन आपको ड्राइव करके दे दिया। और उसके बाद वी हैव गॉट सम कंक्लूजन, क्योंकि जब हम लिखते हैं कि प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, व्हाई इट इज सो? बिकॉज
दिस इज यूज्ड फॉर ओवरकमिंग द shear रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो जब जैसे जैसे फ्लो आपका आगे को बढ़ता जाएगा तो प्रेशर आपका कंज्यूम होता जाएगा उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, इसलिए आपका जो प्रेशर होगा वो ड्रॉप करेगा फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, और जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट आपका को मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? तो अब हम शेयर स्ट्रेस की शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन को ट्राई करेंगे। So let us come to the practical application of this. Flow of viscous fluid through the circular pipe. I have taken the circular pipe here, horizontal circular pipe, and the fluid is flowing from left to right. Fluid जो आपका है वो आपका left से right की तरफ flow कर रहा है, yes, from left to right. The fluid is flowing like this from left to right here. This circular pipe, you can say, it is having the capital R radius, or you can say that the capital D is the diameter of the horizontal circular pipe. The fluid is passing or flowing from the left to right. Here we will drive the equation or find the value of the shear stress, equation of the shear stress distribution, as well as the velocity equation of the velocity distribution, maximum velocity, as well as the pressure difference, or you can say head loss in this case. जो इसमें 3-4 हमारे डिफरेंट टॉपिक होंगे, 1 by 1 हम लेंगे इसको। सो व्हाट इज देयर, हमने क्या लिया, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप, वी हैव टेकन its radius is capital R, and the fluid is flowing from left to right. You understand? Now consider the small concentric fluid element in the pipe. जो बड़ी पाइप है उसमें आप कंसिडर करें, अज्यूम करें कि आपका स्मॉल कंसेंट्रिक फ्लूइड एलिमेंट है विच इज हैविंग द स्मॉल रेडियस R. इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r is the radius of the concentric fluid element, and this is moving within the which is sliding inside the fluid cylindrical element. ये जो आपका फ्लूइड एलिमेंट है ये स्लाइड कर रहा है, हम अज्यूम करें कि ये स्लाइड कर रहा है फ्लूइड कंसेंट्रिक फ्लूइड सिलेंड्रिकल एलिमेंट, और जिसका रेडियस जो है वो क्या है, r प्लस डी आर। तो हम लिख सकते हैं, लिख लें यहां पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस क्या है इसका, कैपिटल R. यू अंडरस्टैंड? स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, कंसेंट्रिक फ्लूइड एलिमेंट का मतलब है दैट इज आल्सो इन द सर्कुलर शेप ऑफ, जो लिया यहां पे, ऑफ रेडियस स्मॉल r, एंड दिस इज स्लाइडिंग इनसाइड द सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट। ये किसके बीच में स्लाइड कर रहा है, sliding the fluid, this is sliding inside the fluid cylindrical element. ये आपका स्लाइड कर रहा है, यहां पे स्लाइड्स in the inside the cylindrical fluid element of, इसका रेडियस कितना होगा, नेचुरली इसका रेडियस इससे बड़ा ही होगा तभी इसके बीच में स्लाइड करेगा। अगर आपका सर्कुलर जो आपका स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट का रेडियस r है तो हम अज्यूम करें कि इसका अगर थिकनेस dr है तो इसका रेडियस होगा आपका r प्लस
TR, you understand? फ्लूइड, सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट का। तो ये कुछ थोड़े से पैरामीटर्स थे जो मैंने लिए, राइट। अब इसके डेरिवेशन पार्ट के ऊपर आएंगे हम। ये तो हो गया इसमें। नाउ द फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्लूइड हमारा लेफ्ट से राइट के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जो है कि लेफ्ट जो फेस होगा इसका फ्लूइड एलिमेंट का, दैट इज AB, इसके ऊपर प्रेशर फोर्स कोई एक्ट करेगी। लेट्स से दैट द P इज द प्रेशर ऑन द फेस AB, राइट। P आपका प्रेशर है, P इज प्रेशर ऑन फेस AB, राइट। कंसिडर करें P इज द प्रेशर ऑन द फेस AB। तो प्रेशर ऑन फेस CD के ऊपर क्या होगा? बिकॉज द फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से पास कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, लाइक दिस। ये आपका फ्लूइड जहां से निकल रहा है, जहां पे इस तरीके से ये डायरेक्शन है। तो इसका जो प्रेशर होगा वो फेस जो आपका CD है उसके ऊपर एक्ट करेगा यहां पे, राइट। तो उसका जो डायरेक्शन होगा प्रेशर का, इस केस में अगर इसका प्रेशर जो है वो इस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो इसका जब ये बाहर जहां से निकलेगा तो इस फ्लूइड का जो प्रेशर होगा फेस के ऊपर एक्ट करेगा। तो इसका जो प्रेशर की डायरेक्शन होगी वो फेस की टुवर्ड्स होगी, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन की बात तो बाद में करेंगे, बट एज आई टोल्ड यू, जब हम टोटल फोर्सेस का सम लेंगे उस वक्त वी हैव टू सी कि कौन सी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो प्रेशर ऑन द फेस CD, हमें क्या निकालना है? प्रेशर ऑन द फेस CD, दिस इज इक्वल टू P। तो आपका ये प्रेशर हो गया इस पॉइंट के ऊपर, राइट। इस पॉइंट के ऊपर P प्रेशर है। अब इसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा x। वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर। तो ये आएगा डेल P अपॉन डेल x इंटू del P upon del x into delta x into delta x. This is the pressure at the face CD. You understand? So this is the pressure at the face CD. You understand? तो ये एक आ गया फेस CD, और तीसरा तो आपका shear stress भी एक्ट करेगा। टाउ इज द shear stress and the shear stress that will act at the periphery of the cylindrical element, fluid element, इसकी जो पेरिफेरी है उसके ऊपर एक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो टाउ इज द shear stress, आप कह सकते हैं टाउ इज द shear stress। यू अंडरस्टैंड? ये आगे प्रेशर फोर्सेस जहां पे हमें जो मिलेंगे, सारी प्रेशर्स वगैरह क्या एक्ट करेंगे। आप देखिए इसमें देखिए, सिंस द this is very important condition, since the flow is steady, अगर आपका फ्लो स्टडी है, लैमिनार है, since the flow is steady, तो every molecules of the fluid moves without acceleration। तो इस केस में क्या होगा कि every particle or every molecules, तो every molecules ऑफ लिक्विड कर लीजिए यहां पे, moves without acceleration। This is very important point to understand। अगर आपका फ्लो स्टडी है तो हर जो मॉलिक्यूल्स होगा लिक्विड का, उसकी एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगी?
जीरो होगी, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड लिक्विड मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन। तो इसका क्या इफेक्ट होगा अगर मैं समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन लेता हूं ऑफ द फ्री बॉडी। सपोज मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता हूं एंड द समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज जीरो। तो समेशन ऑफ फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में होंगी वो क्या होंगी, जीरो होगी। तो आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ टोटल फोर्सेस, summation of total forces in x direction means in the direction of flow. Summation of the forces in the x direction on the free body, on the free body, this is equal to 0. You understand that? So summation of the total forces in the x direction on the free body is 0, because our flow is steady, and when the flow is steady, every molecules of the liquid or every fluid molecules moves without the acceleration. So you can say that the acceleration is 0 in this case. जो acceleration fluid molecules का होगा वो क्या होगा, 0 होगा। So the summation of total forces की बात करें हम in the x direction on the free body, so that is also equal to 0, because the acceleration is 0 of every fluid molecules. So summation of the total forces, that is equal to 0. You understand? So this is the important point. अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्सेस निकालनी है। तो पहले हम फोर्स को निकाल लेंगे। प्रेशर तो हमें फेस एवी के ऊपर भी है गॉट इट। तो टोटल फोर्स ऑन द फेस एवी, फोर्स ऑन द फेस CD एंड देन द शियर फोर्स। ये तीन ही तो फोर्सेस मिलेंगे हमें, तो ये हम तीनों फोर्सेस निकाल सकते हैं, राइट। तो पहला आ गया फोर्स ऑन और द प्रेशर फोर्स ऑन द फेस AB। प्रेशर फोर्स लिख लीजिए, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स on face AB। प्रेशर फोर्स ऑन द फेस AB क्या होगा, ये तो आपको पता है, दैट इज P इंटू एरिया। और एरिया क्या होगा इसका, सिलेंड्रिकल एलिमेंट का, फ्लूइड एलिमेंट जो लिया है, स्मॉल r इज द रेडियस, तो एरिया होगा इसका पाई इंटू r स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? दिस इज क्लियर? This is the pressure force on face AB. Now the pressure force on face CD, pressure force face CD पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा यहां पे, P प्लस डो P अपॉन डो X इंटू डेल्टा X। This is the pressure on the face CD into pi r square. You understand? Into pi r square. And now the shear force acting on the periphery of the cylindrical element. थर्ड क्या है, shear force। हमें shear force निकालनी है, shear force acting on the periphery of cylindrical element क्या होगा, P इंटू 2 पाई r, P इंटू 2 पाई r, सॉरी नॉट P, सॉरी shear stress है ना, दैट इज टाउ, टाउ इंटू 2 पाई r इंटू डेल्टा x। हमें पेरिफेरी में, तो पेरिफेरी का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, दैट इज 2 पाई r, r इज अ स्मॉल रेडियस ऑफ दिस
फ्लूइड एलिमेंट, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीफेरी का पेरीमीटर क्या आएगा 2 पाई आर, एंड इफ द लेंथ इज डेल्टा एक्स, सो एरिया ऑफ दिस जहां पे आपकी शेयर फोर्स एक्ट करेगी दैट इज इक्वल टू टाउ 2 पाई आर डेल्टा एक्स। तो ये 3 फोर्सेस हमने निकाल ली, यू अंडरस्टैंड। सो दीज 3 फोर्सेस वी हैव कैलकुलेटेड। ये आ गया आपका प्रेशर फोर्स जो है आपकी फेस एवी के ऊपर है पाइप, ये प्रेशर फोर्स आपकी फेस सीडी के ऊपर ये वाली, और जो आपकी शेयर फोर्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर दिस इज वन इज, यू अंडरस्टैंड। अब समेशन ऑफ द फोर्सेस, जैसे मैंने आपको बताया समेशन एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, so as there is no acceleration, hence the summation of forces in the x direction that is equal to 0, right? तो summation of forces in the x direction क्या होगी, 0 होगी। तो summation of forces x direction में आप 0 ले ले, right? अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, hence there is no acceleration, right? एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे फ्लो इज स्टडी, तो समेशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस यू कैन से एफ एक्स, सेकेंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0, राइट? अब ले लीजिए समेशन ऑफ फोर्सेस। पहले आ गया प्रेशर फोर्स ऑन फेस एवी, इसको एज इट इज ही लिखिए, P इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस जहां पे प्लस होगा, बट प्रेशर फोर्स ऑन फेस सीडी क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर इज द फ्लूइड इज लिक्विड इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, जो इसकी प्रेशर फोर्स होगी वो फेस सीडी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो प्रेशर फोर्स होगी इसकी वो इस डायरेक्शन के ऊपर एक्ट करेगी, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इसका मतलब है यहां पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा, मैं तो डायरेक्ट भी कर लेता लेकिन आपको बताने के लिए क्या गया, P प्लस डो P अपॉन डो X इंटू डेल्टा एक्स, राइट? यू अंडरस्टैंड, इनटू पाई आर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। ये हमारी आ गई प्रेशर फोर्स ऑन द फेस सीडी। अब शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर दिस इज, एंड शेयर फोर्स भी जो होगा वो हमारे क्या करेगा, फ्लो को रजिस्ट करेगा, यू अंडरस्टैंड। जो भी पीछे इतना हमने डिस्कस किया, जो शेयर फोर्स है दैट विल रजिस्ट द फ्लो, सो इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस शेयर फोर्स दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो विच इज इन द एक्स डायरेक्शन। तो इसको भी अगर इस तरीके से लिखना चाहिए, प्लस कर लीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए इधर, और सब कुछ माइनस में कर लीजिए, माइनस टाउ टू 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, यू अंडरस्टैंड, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा समेशन आ गया इसका, इसको मिटा देते हैं। एक लाइन और यहां पे लिख लेते हैं। सो अब इसको आप ओपन कर लीजिए, ये आपका आ गया P इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो ये आएगा माइनस P इंटू, इसको ओपन कर लो, पाई आर स्क्वायर माइनस P इंटू डेल P
अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस और माइनस, फिर माइनस हो जाएगा माइनस पाई इंटू 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारी दिस आइटम एंड दिस कैंसिल हो जाएगा ये सारा, राइट। अब आप हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा माइनस पी इंटू डो डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन निकलेगा। एक कॉमन आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज अ कॉमन हेयर दोनों में, और दूसरा पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे। यू अंडरस्टैंड? पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे। सो इसे कॉमन ले लीजिए। सो कॉमन इज डेल्टा एक्स पाई इंटू आर, राइट। माइनस पी इंटू आर माइनस पी इंटू पाई आर कॉमन है ना, इंटू आर इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, राइट। ये आएगा माइनस पी इंटू आर डेल पी अपॉन माइनस पी आई बाई आर स्क्वायर, जहां पे पी नहीं रहेगा भाई, जहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2p अपॉन डेल एक्स, यस। तो ये p कैंसिल हो जाएगा जहां से, दैट इज माइनस, यस। सो जहां पे आपका ठीक कर लीजिए, ये मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये माइनस पी पाई आर स्क्वायर माइनस पी पाई आर स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर, यह आएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, यस, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर एंड रेस्ट इज माइनस 2 पाई आर, राइट। तो जहां से ये क्या आएगा बीच में, डेल एक्स पाई आर कॉमन, डेल एक्स पाई आर कॉमन, ये आएगा, ये आपका आएगा माइनस आर इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, टाउ तो आपका इससे ही आएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? टाउ को आप सीधा ले लीजिए आप, तो जे आपका कॉमन है, जे तो जाएगा माइनस टाउ इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पाई और डेल आर और डेल एक्स कॉमन है। यू अंडरस्टैंड दिस? This becomes 0, either this is equal to 0 or this equal to 0, तो ये आपका 0 आ गया। तो दिस इक्वेशन आपकी बनी, इसे लिख लीजिए माइनस आर डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2 टाउ। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, ठीक है ना। therefore टाउ इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, यहां पे शेयर स्ट्रेस निकालना है। therefore
टाउ इज इक्वल टू, दैट इज shear स्ट्रेस की हम डेरिवेशन जहां पे निकालेंगे कि shear स्ट्रेस का क्या इक्वेशन होगा, तो यहां पे हमें shear स्ट्रेस का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये therefore tau is equal to r by 2 into minus tau p upon 2x, right? This is the equation of the shear stress, or you can say इसको इस तरीके से भी लिखें, इस तरीके से लिख लें, minus dou p upon del p upon del x into r by 2. This is equal to tau. So this is the equation of the shear stress. You understand? So this is the equation of the shear stress. ये याद रखना है, बहुत important. This is the equation of the shear stress at the radius r. ये आपकी इक्वेशन shear stress की है at radius small r के ऊपर मैंने ड्राइव किया। और अगर जहां पे पहले आप देख लीजिए, अगर shear stress हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम shear stress हमारा कब होगा? जब हमारा स्मॉल r जो है दिस इज इक्वल टू बाल के ऊपर होगा, जो इसकी बाउंड्री है उसके ऊपर होगा। तो बाउंड्री का जो डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना है? r है। अगर हमारी r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम shear स्ट्रेस। और मिनिमम shear स्ट्रेस कहां पे होगा? जब आपका r जो है 0 होगा। अगर r को 0 पुट करें तो टाउ की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए सेंटर लाइन के ऊपर जो सर्कुलर पाइप सेंटर लाइन थी उसके ऊपर हमें जो shear स्ट्रेस है वो हमें 0 shear स्ट्रेस मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये तो इक्वेशन आ गया इसका। यू अंडरस्टैंड दिस? अब पहले हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो अगर वेलोसिटी अगर ये इक्वेशन देखें आप, ये जो shear स्ट्रेस की आपकी इक्वेशन थी, जहां पे देखें तो जहां पे क्या है, ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये। सो यू कैन से, जहां पे पहला तो पॉइंट हमें कंक्लूजन ये मिलेगा, कंक्लूजन जो है thus the shear stress varies linearly along the radius of the pipe, along the radius of pipe, right? Yeah, r/2 है ना, along the radius of pipe। एक तो ये कंक्लूजन मिला, राइट? दूसरा हमें इसमें हमें मिला, व्हाट इज द सेकंड वन? जो फर्स्ट था, सेकंड हम देखिए जहां पे क्या है, देखा आपने नेगेटिव साइन मिला। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो प्रेशर है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो नेगेटिव साइन, ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया, इंडिकेट्स दैट pressure decreases in the direction of flow। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। You understand? Pressure decreases in the direction of flow।
ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया था प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज द प्रेशर इज ओनली वन कंपोनेंट अवेलेबल हियर विच रेजिस्ट द shear स्ट्रेस का जो रेजिस्टेंस होगा उसको विच ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द shear स्ट्रेस। इसलिए जो प्रेशर की वैल्यू होगी इस केस में वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब जहां पे जो मैंने लिखा है shear स्ट्रेस वेरीज लीनियरली, और अगर मैं इसकी वेलोसिटी shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करता हूं तो इसकी shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, देखिए। So this is your circular pipe, right? So this is your circular pipe, right? तो एक सेक्शन ले लीजिए। So at any section you can say pressure gradient is constant. अगर कोई किसी सेक्शन की बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट किसी सेक्शन के ऊपर, ये सेक्शन की बात है तो प्रेशर ग्रेडियंट जो आपका होगा डो पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये तो आपको कांस्टेंट ही होगा। यू अंडरस्टैंड? प्रेशर तो डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बट एट सेक्शन की बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, देखिए इसमें मैंने जैसे आपको बताया सेंटर लाइन के ऊपर पहले इसका बना लेते हैं, राइट? सेंटर लाइन के ऊपर इसका फर्स्ट वी विल राइट ऑन दिस। तो एट द सेंटर ऑफ पाइप, अगर मैं सेंटर ऑफ पाइप की बात करूं तो स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। तो टाउ की क्या इक्वेशन थी, टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई 2, राइट? टाउ इज इक्वल टू माइनस, यही इक्वेशन हमने ड्राइव किया ना, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई 2। तो एट द सेंटर ऑफ द पाइप की बात करें तो सेंटर ऑफ द पाइप में स्मॉल आर क्या है, 0 है। तो सेंटर ऑफ द पाइप में जो आपकी टाउ की वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगा, टाउ की वैल्यू 0 होगी। तो जहां पे जो आपकी shear स्ट्रेस है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर टाउ आपका क्या है, 0। यू अंडरस्टैंड? टाउ की वैल्यू 0। और मैक्सिमम shear स्ट्रेस कहां पे होगी, टाउ मैक्स कहां पे होगा, अगर हम आर को कैपिटल आर में सब्स्टिट्यूट करें तो दैट इज माइनस डो पी अपॉन डो एक्स इंटू आर बाई 2। यू अंडरस्टैंड? तो इसका कह सकते हैं आप कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस हमें जहां पे मिलेगी, तो जहां पे हमारी क्या होगी, मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगी, जस्ट लाइक दिस। ये मैक्सिमम shear स्ट्रेस हमारी यहां पे होगी। यू अंडरस्टैंड? और मिनिमम shear स्ट्रेस हमारी कहां होगी, सेंटर में हमारी मिनिमम shear स्ट्रेस होगी, जहां पे सेंटर में। तो ये आपकी बनेगी इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हर पॉइंट के ऊपर देखिए स्ट्रेस आपकी वेरी करेगी। इसी तरीके से इसमें आपकी मैक्सिमम होगी और इसमें मिनिमम होगी। यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रेस। सो दिस इज योर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सर्कुलर पाइप। तो जहां पे जो पॉइंट आपने याद रखना है कि
मिनिमम स्ट्रेस या जीरो स्ट्रेस मीन्स मिनिमम shear stress, minimum shear stress tau is equal to 0 at the center line of pipe for second. Maximum shear stress, ये टाउ नॉट से भी करते हैं, टाउ मैक्स लिख लो, जो भी लिख लो, दैट इज एट द बाउंड्री, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू, और जहां पे वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0. So this is your shear stress distribution. आज हमने shear stress distribution का भी इसमें पढ़ लिया. मिनिमम shear stress कहाँ पे मिलेगी, मैक्सिमम shear stress कहाँ होगी, और shear stress का क्या फार्मूला होगा एट द रेडियस स्मॉल आर, और मैक्सिमम shear stress का क्या फार्मूला होगा. तो आज का लेक्चर हम जहां तक ही रखेंगे. जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्योंकि अगर मैं सारा एक साइड करवाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो ना आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीजें जो है इन बिटवीन मिडल में आ जाएंगी, लंबा लेक्चर देख के आप नहीं पढ़ेंगे. इसलिए मैंने जो एक लेक्चर था ये बड़ा वाला, इसको मैंने कुछ बाइफरकेट किया है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलोसिटी और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और प्रेशर डिफरेंस और हेड, नेक्स्ट लेक्चर में वो ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करूंगा. राइट. तो आज का लेक्चर जहां तक ही है, तो नेक्स्ट का वेट कीजिए. तो जहां तक मुझे लगता है कि जो हमारा लैमिनार फ्लो का जो फर्स्ट टॉपिक था, हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लेक्चर, जहां पे आपको इंट्रोडक्शंस भी क्लियर करके दी, विस्कोसिटी का कंसेप्ट आपको पूरा दिया, इक्वेशन जो आपकी टाउ थी दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ये इक्वेशन आपको बार बार इस्तेमाल करेंगे. जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे वहां पर भी आपको वो इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो इसलिए उस कंसेप्ट को जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैंने रिवाइज भी किया वहां पे, और ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. आज का इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा, सर्कुलर पाइप का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो उसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. राइट. सो थैंक यू वेरी मच.